Hello everyone, this is your mathematics educator Abhinav Jha and I welcome all of you on i30 learning platform. So guys, today we will be discussing all the shifts in detail, that what was the weightage analysis, what was the difficulty analysis, and what was the class-wise distribution of all the 4 shifts which have happened so far. So let's proceed with 24 shift 1 full paper analysis. So guys, if we look into the chapter-wise weightage of calculus, so we can see here it is bifurcated into 2 different parts. One is differential calculus, one is integral calculus. So they have 3 and 4 questions respectively. तो आप देख सकते हैं कि totally 6 to 8 questions calculus से आता है, और इस पेपर में भी ऐसा ही हुआ. We had 7 questions in all from calculus. If you look into the next particular subtopic which we have here is coordinate geometry, which had 4 questions. And hyperbola question was there, which was a norm in the last few years, and definitely going forward in the coming shifts you can expect a question from hyperbola, obviously, right? So this is something which is very important to note. Now if you look into the algebra part, so algebra has many subtopics. We've got PNC, binomial theorem, matrices, determinants, and complex numbers. So if you look into comparatively, algebra weightage was slightly low in the first shift of 24th, and you can expect this weightage to increase in the coming shifts, right? तो आगे वाले shifts में हमने देखा कि algebra का weightage बढ़ता चला गया. अगर आप बात करें वेक्टर 3D की, तो एक पर्टिकुलर क्वेश्चन डेफिनेटली आता है इन दोनों चैप्टर्स से, एंड कुछ शिफ्ट्स में आपको दिखेगा कि 3D से एक क्वेश्चन एक्स्ट्रा था जो कि इस शिफ्ट में देखा गया. मैथमेटिकल रीजनिंग, रिलेशंस, फंक्शंस, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, दीज आर द लेफ्ट ओवर टॉपिक्स जिनसे एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस डेफिनेटली थे. मैथमेटिकल रीजनिंग से हमेशा क्वेश्चन आएगा, नो डाउट अबाउट इट. स्टैटिस्टिक्स कुछ शिफ्ट्स में मिस हो सकता है, बट नॉट मैथमेटिकल रीजनिंग. एंड मैथमेटिकल रीजनिंग में निगेशन ऑफ पी और क्यू पे क्वेश्चन मैक्सिमम देखा गया है कि वो यूज डेफिनेटली होता है. अगर आप ओवरऑल डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो कैलकुलस वाज अराउंड 32%, अलजेब्रा वाज at a low 23%, vector 3D was at 14%, coordinate geometry was around 18%, and the rest of the topics had a weightage of around 13%. If you look into the difficulty level analysis, so we have bifurcated in easy, medium, and hard. So if you look into easy, we had around 7 questions, we had 11 questions for medium, and we had 4 questions which were of hard difficulty level. This was the bifurcation, and overall picture if you look into that mathematics में hard questions जो हैं वो पिछले साल के comparison में काफी कम हो चुके हैं, right? This is a different thing altogether, right? पिछले सालों में हमने देखा है कि ये difficulty level around 7 to 8 definitely रहता है, and ये भी एक high number है इस साल के पेपर में. आने वाले शिफ्ट्स में आप देखेंगे कि ये जो हार्डनेस है वो और कम हो चुकी है. आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट केमिस्ट्री, बट आई एम टॉकिंग अबाउट डिफिकल्टी लेवल इन जेईई मेंस मैथमेटिक्स. तो गाइस, क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन अगर आप देखें तो लगभग 50% रहता है हर साल, और इसमें ज्यादा चेंजेस नहीं होते हैं. तो 11th की बात करें तो 10 क्वेश्चंस, 12th की बात करें तो 12 questions. So 45%, 55% respectively. So which is a nominal figure, और आगे भी आप ऐसा ही देखेंगे in the coming shifts. Now let's proceed for 25th shift 2. So we'll do full paper analysis again of this particular shift. So guys, if you look into the chapter wise weightage of calculus, again quickly I will take it you through. So 3 questions each from differential and integral calculus. So as I told you, 6 to 8 questions आपको calculus से मिलेंगे, but this is only a figure of around 22 to 25 questions which we've got. So definitely और 4-5 questions जो हमारे पास नहीं आ पाए unfortunately, उसमें एक आध question हर bifurcation में बढ़ सकता है. So please make sure that you keep that in your mind. Next, तो अगर आप बात करें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री से, अगेन 3 to 4 क्वेश्चंस. तो दिस वाज द वेटेज इन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. एंड इफ यू लुक इनटू
दी अल्जीब्रा। सो अल्जीब्रा में इस पेपर में आप देख सकते हैं डाइवर्सिटी, काफी सारे चैप्टर्स से क्वेश्चंस आए थे, लाइक पीएनसी, बाइनोमियल, मैट्रिसेस, डिटरमिनेंट, कॉम्प्लेक्स नंबर, सीक्वेंस, सीरीज, प्रोबेबिलिटी. सो वी कैन सी दैट बाइनोमियल थ्योरम एंड परमुटेशन कॉम्बिनेशन एंड मैट्रिक्स डिटरमिनेंट, इनसे ज्यादातर चांसेस हैं कि दो दो क्वेश्चन आ जाए. यस, एक क्वेश्चन तो पक्का इन तीनों से रहेगा ही रहेगा, एंड दो क्वेश्चन के भी चांसेस बढ़ रहे हैं. इस बार कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का वेटेज काफी कम दिखा मुझे इन ऑल द 4 शिफ्ट्स, व्हिच वाज you can say a surprise. I was not expecting it, but yes, this has happened. बात करें वेक्टर 3D की, again as I told you, one question each was there, which was a very interesting thing, and I'm telling that sarcastically, but yes, this is happening in all the shifts guys. तो वेक्टर 3D को ना छोड़ के जाएं. क्यों? क्योंकि इसको कंप्लीट करने में आपको मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स लगेगा. अगर बेसिक्स भी जानते हैं, उसके बाद अगर आपको जेईई मेंस लेवल की तैयारी करनी है तो 5-6 घंटे सफिशिएंट होते हैं वेक्टर्स एंड 3D को अच्छे से एक्यूमुलेट करने में, उनके फॉर्मूलेस को, एंड कीपिंग अ वेरी गुड एंड वेरी हेल्दी प्रैक्टिस इन दिस चैप्टर इज वेरी इंपॉर्टेंट टू सॉल्व पर्टिकुलर क्वेश्चंस जो इससे आते हैं. Going forward, mathematical reasoning, sets, relations, statistics, trigonometry, इन सबसे एक एक क्वेश्चन दिखे, एंड आगे कुछ क्वेश्चंस जो हमारे पास नहीं आ पाए, उनमें भी कुछ मिसलेनियस टॉपिक्स के क्वेश्चन हो सकते हैं. तो गाइस, अगर आप वेटेज एनालिसिस की बात करें, देख सकते हैं आप अलजीब्रा का परसेंटेज बढ़ चुका है और आगे वाले आने पेपर में और बढ़ सकता है, राइट. सो डेफिनेटली अलजीब्रा को प्रैक्टिस करें, एक भी पर्टिकुलर टॉपिक छोड़ के न जाएं मैथमेटिक्स में, क्योंकि मैथमेटिक्स आसान आ रहा है, राइट एवरीबॉडी. Yes. So rest 22%, vector 3D 8 and coordinate 12%. अगर आप बात करें difficulty analysis की guys, तो here 8, 14 and 2. So this is what we have come up with. Our team has come up with. We can see that medium level questions are around 58%, easy level questions are around 33%, and we've got hard, a very low 9%, right? So this is what we can expect इन द कमिंग शिफ्ट्स की मैथमेटिक्स में. ऑब्वियसली डिफिकल्टी लेवल जो है वो कम होते जा रहा है, तो आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 3-4 क्वेश्चन एट मैक्स जो डिफिकल्ट लेवल के होंगे, जिनको आप लास्ट में कर सकते हैं. किल इजी, हिट द मीडियम एंड टफ लेटर. सो दिस इज माय फिलॉसफी फॉर सॉल्विंग द मैथमेटिक्स पेपर. ओके, चैप्टर वाइज अगर आप डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें तो वी गॉट 13 क्वेश्चंस फ्रॉम 11th and 12th we had around 11 questions, तो percentage around 50-50 ही रहता है. Slight advantage you can say किसी को मिल सकता है, so that is not a fixed thing कि 12th ही हमेशा ज्यादा आता है, नहीं, मैथमेटिक्स में equal advantage रहता है दोनों को. Now let's proceed with 25th shift 1 full paper analysis. तो अगर चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, डिफरेंशियल कैलकुलस आई टोल्ड यू 6 to 8 रहता है, 3 and 4 रेस्पेक्टिवली, विच इज अ वेरी इन जनरल फिगर. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री 3 to 4 क्वेश्चंस, अगेन 3 क्वेश्चंस हियर, एंड अगेन आप देख सकते हैं कि भाई इसमें थोड़ा भरा भरा सा लग रहा है. पीएनसी, बाइनोमियल, मैट्रिक्स डिटरमिनेंट्स. अच्छा, इसमें आपको कॉम्प्लेक्स नंबर से एक क्वेश्चन था, क्वाड्रेटिक से एक क्वेश्चन था, बट आगे आने वाले शिफ्ट में शायद से एक ही क्वेश्चन है, राइट. Vector and 3D, again one question each. I have discussed this thing in detail. Mathematical reasoning से जैसा कि मैंने आपको बताया guys, negation of P और Q से क्वेश्चन रहता है, वो फैक्टर यूज होता है बार बार. तो अगर ये चीज अगर आपके जहन में है तो आप मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन क्रैक कर सकते हो. बात करें स्टैटिस्टिक्स से तो गाइज मीन एंड वेरिएंस पे ही क्वेश्चन आता है, राइट. सो यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दैट फॉर्मूला ऑफ वेरिएंस है ना, mean of squares minus mean square, right? That is the formula to solve the statistics problem easily, right? Okay, अगर आप देखें distribution तो algebra again was at 33%, 30% calculus, vector 3D and coordinate had the similar distribution in the last few shifts which I have already discussed. बात करें डिफिकल्टी एनालिसिस की गाइस, तो इसमें आप देख सकते हैं हार्ड क्वेश्चंस 3 ही थे, तो मैंने जैसा कि बताया 2 या 3 या 4 मैक्स आप एक्सपेक्ट कर सकते हो डिफिकल्ट क्वेश्चंस. उसके बाद गाइस डिफिकल्टी एनालिसिस में इजी, मीडियम, हार्ड में आप परसेंटेज डिस्ट्रीब्यूशन देख सकते हो 54, 33 एंड 13%.
नेक्स्ट क्लास वाइज डिस्ट्रीब्यूशन की बात करें, 11th एंड 12th ये रहा 11 क्वेश्चंस एंड 13 क्वेश्चंस रेस्पेक्टिवली, सो इट वाज roughly 50-50 figure as I have told you before as well. Let's go to the last shift which we have, that is 25 shift 2. So let's see what is the full distribution. So अगर आप कैलकुलस की बात करें तो इसमें थोड़ा बहुत कम है, मे बी इसके हमारे पास क्वेश्चंस भी कम थे, हमारे पास अराउंड 22 क्वेश्चंस ही आए शिफ्ट के, मे बी जो बाकी बचे 8 क्वेश्चन थे उसमें कैलकुलस का नंबर बढ़ सकता है, एंड दिस फिगर कैन डेफिनेटली गो अप टिल 7. कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री गाइस वी हैव अराउंड 3 क्वेश्चंस, एंड अलजीब्रा की बात करें तो ये वाले पेपर में काफी भरा भरा सा दिख रहा है हमें. प्रोबेबिलिटी का गाइस सरप्राइजिंगली 2 क्वेश्चन था, पीएनसी के 2 क्वेश्चन थे, तो जिन बच्चों को पीएनसी प्रोबेबिलिटी पसंद है वो इस पेपर में काफी एंजॉय कर रहे होंगे, राइट. एंड गाइस एक और फैक्टर जो मैंने आपको नहीं बताया, पीएनसी से क्वेश्चन बहुत ईजी आ रहे हैं, जो कि देखा गया पिछले कुछ शिफ्ट्स या पिछले कुछ ईयर्स में आपने नहीं देखा होगा. पीएनसी के क्वेश्चंस आर एट अ all-time low-level quality, right? Yes. So this is the thing which we've got. Matrix equation पे आपके पास क्वेश्चंस रहते हैं, डिटर्मिनेंट्स में आपके पास बेसिक प्रॉपर्टीज के क्वेश्चन रहते हैं, लॉग को कुछ पेपर्स में काफी यूज किया गया है इन डिटर्मिनेंट्स, सो प्लीज लॉग को थरोली पढ़ के जाएं. वो कोई लिखता नहीं है बट हर जगह लॉग घुसा रहता है, राइट. जस्ट लाइक ट्रिग्नोमेट्री आपको दिखेगा नहीं पेपर में कहीं पे कोई एनालिसिस में, बट ट्रिग्नोमेट्री अच्छी होनी चाहिए, उसी तरीके से लॉग को भी अच्छी होनी चाहिए. ये एक टूल है ऑफ मैथमेटिक्स विच कैन बी यूज्ड इन ऑल द चैप्टर्स, राइट. सो लॉग एंड ट्रिग्नोमेट्री कहीं दिखेगा नहीं आपको इन डिटेल, बट यस इट हैज लॉट ऑफ वेटेज. अगर आप बात करें वेक्टर 3D की, अगेन 1 क्वेश्चन ईच, मैथमेटिकल रीजनिंग एंड रिलेशंस फंक्शंस, इसमें मिसलेनियस से थोड़े बहुत कम क्वेश्चंस थे, बट यस हमारे पास ओवरऑल क्वेश्चंस भी कम आए थे. तो आगे आप जब पूरा पेपर आपके पास आ जाएगा तो आपको दिखेगा कि कुछ और पर्टिकुलर टॉपिक से भी क्वेश्चंस थे पेपर में. तो आप देख सकते हैं गाइस, अलजीब्रा का परसेंटेज काफी हैवी दिख रहा है, कैलकुलस थोड़ा सा कम दिख रहा है, बट दिस इज ऑब्वियसली अ मेमोरी बेस्ड एनालिसिस, right, which is you can say has around 80 to 90% accuracy, right. तो दिल पे नहीं लेना है इसको, right, क्योंकि जब बाद में जब एक्चुअल पेपर आएगा then only you can conclude, but we are doing this for our students, for our beloved students who are going to write the examination from 29th to 1st of February, right guys. So you can see this analysis and you can prepare accordingly and you can definitely crack the JEE mains this particular year, right everybody. Let's go ahead. So we've got difficulty analysis here. You can see here easy questions काफी ज्यादा थे इस शिफ्ट में, and medium आप देख सकते हो 11 questions थे and hard questions were only 2. So this was the percentage analysis. Now finally let's go to the class wise distribution. 11 से 12 question, 12 से 10 questions. As I told you we had only 22 questions this shift. बाकी 8 questions भी थोड़ा बहुत परसेंटेज को इधर उधर कर सकते हैं, but this was the overall picture we had of the particular shift. Okay guys, so that is it I think so for today, and we will be coming up with the future analysis of all the amazing shifts which are going to happen from 29th to 1st of February. है ना, पेपर सोल्यूशन आपको मिलेगा guys इस amazing से चैनल पे Y30. Do not forget to subscribe this channel for some amazing videos because we are going to create revolution in education history. Thank you guys.